محفوظ بسنت منانے کا حکومتی فیصلہ بہت بڑا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پرانے آرڈیننس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ بسنت کو تمام تر حفاظتی اقدامات کے ساتھ منایا جائے گا۔ فیصلے سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں شامل کیا گیا ہے۔ اب لاہوریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس فیسٹیول سے محظوظ ہو سکیں۔ مزید کیا کہا گیا آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آرڈیننس بسنت کی جو آپ نے بات کی 2001 کا یہ آرڈیننس تھا اور اس کے اوپر مکمل 8 مہینے کام ہوا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن ہوئی ہے اور اس کو انسانی کوشش کے مطابق سکہ بند اس میں جو حفاظت کی تدابیر ہیں وہ اس قانون کا حصہ ہیں۔ یہ قانون بن چکا ہے، یہ آرڈیننس ایک آ چکا ہے اور اس آرڈیننس کے ذریعے جو پورے اس کے ایس او پیز ہیں اور یہ ایس او پی بالکل گراس روٹ لیول سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس تمام سیکٹر کی اس تمام چیزوں کی وہ آپ ضرور آرڈیننس پڑھیں۔ اس کے اندر کمپیریزن بھی ہے کہ کیا قانون پہلے تھا، کیا آرڈیننس پہلے تھا اور اس کی پوری امپلیمنٹیشن رولز اینڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ اس آرڈیننس کا حصہ ہے اور اس کے مطابق اس کو۔ لیکن پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ یہ تہوار لانا بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ جس وجوہات کی وجہ سے یہ بند ہوا، یہ وہ تہوار تھا جو لاہور کو دنیا کے نقشے کے اوپر نمایاں کرتا تھا اور یہ وہ تہوار تھا جو لاہور میں اسپیسیفکلی ہم سب بچپن میں اس تہوار کو دیکھے بڑا انفارچونیٹ تھا کہ ایک بڑی جنریشن جو ہے وہ اس تہوار کو منانے سے مسڈ رہی۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس ڈور بنانے والے کی، ڈور کو سیل کرنے والے کی، فروخت کرنے والے کی، ڈور کو لینے والے کی، جس نے بسنت کے لیے ڈور لینی ہے۔ ہم نے اپنے چیکس پروڈکشن سے لے کر سیل سے لے کر یوز سے لے کر سب پہ رکھیں۔ رجسٹریشن ہے، کیو آر کوڈڈ ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، سپرویژن ہے، مانیٹرنگ ہے، قانون کے اندر سزا اور جزا ہے، لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی لاہور کے شہریوں کے اوپر ہے کہ اگر اس کا ریوائول وہ آنے والے وقت کے لیے مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی اور ان کی ذمہ داری کے بغیر یہ تہوار حفاظت کے ساتھ محفوظ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ منانا مشکل ہوگا۔ تو اس میں بسنت کے اوپر ایک کمپلیٹ پریس ٹاک کروں گی اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ لاہور میں مخصوص مقامات پر پتنگ بازی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شہریوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کچھ شہری اس فیصلے سے خوش آئند قرار دے رہے ہیں جبکہ بعض افراد نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کا ایک شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کو اپنے شوق کا ایک موقع دیا جائے کہ اب ہم پتنگ بازی اڑاتے تھے پہلے تو انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ اس وجہ سے ہم نے کافی دیر ہوگی، 2-3 سال ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہم نے ابھی تک کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا۔ قوم آلریڈی جو ہے ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہوا ہے۔ اگر یہ پتنگ بازی سے تھوڑا سا قوم کو جو ہے خوشحالی مل جائے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ پتنگ بازی ہونی چاہیے کیونکہ یہ پنجاب کا کلچر ہے اور بٹ کیا نام ہے پوری احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ جو ہاتھوں پہ جو لگ جاتی ہے ڈور وہ نہیں یوز کرنی چاہیے۔ پتنگ بازی یار بہت اچھی ہے، میں اسٹارٹنگ سے پتنگ بازی کرتا ہوں لیکن یہ نا ڈسکرپشن کی وجہ سے یہ کر نہیں سکتا، تو میں حکومت کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اجازت دیجیے اسٹوڈنٹ کو، کبھی کبھی یہ فنکشن آتا ہے۔ نوجوان ہیں، ہم تو یہی بولیں گے نا کہ پتنگ بازی کی اجازت دینی چاہیے، لیکن تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے۔ یہ جو روڈز پہ کسی دور علاقے میں دے دیں اور تھوڑی سی احتیاط کر لینی چاہیے ساتھ۔ ایک فیسٹیول آپ کا مطلب کہ پنجاب یونیورسٹی ہے اور بچے وغیرہ ہیں کافی اور مزہ وغیرہ بھی آتا ہے، کلچرل ڈے مطلب بن جاتا ہے پورا آلریڈی، تو آپ کو مزہ آنا چاہیے، انجوائے کرنی چاہیے لائف میں، تو یہ کہوں گی تو پھر ہونی چاہیے۔ ڈی آئی جی ٹریفک محمد وقاص نذیر کے احکامات پر قانون سب کے لیے برابر مہم جاری ہے۔ 6 دنوں میں 2600 پولیس اہلکاروں کو ٹریفک چالان جاری کیے گئے ہیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر 434 پولیس اہلکاروں کی گاڑیاں بند کی گئی ہیں۔ سنگین ٹریفک خلاف ورزیوں پر 10 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کریں گے۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو چلاننگ کا سلسلہ جاری ہے، اس میں پولیس افسران اہلکار اور سرکاری ملازمین کی بڑے پیمانے پر چلان کیے گئے ہیں۔ جو آج ڈیٹا جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق 6 دنوں میں 2600 پولیس اہلکاروں کو ٹریفک چلان جاری کیے گئے ہیں۔ ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر 434 پولیس افسران و اہلکاروں کی گاڑیاں بند کی گئی ہیں، جبکہ سنگین ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر 10 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 500 سے زائد دیگر سرکاری گاڑیوں پر بھی
भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। 312 सरकारी गाड़ियां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बंद की गई हैं। 5 सरकारी ड्राइवरों के खिलाफ FIR का इंद्राज किया गया है। इसके साथ साथ जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं उनकी गाड़ियों के भी चलान और ई चलानों की वसूली की गई है और बड़े बड़े सरकारी अफसरान की गाड़ियों के भी ई चलान वसूल किए गए हैं। PM हाउस की गाड़ी का भी चलान किया गया है। CM स्क्वाड की गाड़ी का भी चलान किया गया है। तो DIG ट्रैफिक पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि जिस तरह आम आवाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अगर कोई सरकारी गाड़ी भी ट्रैफिक कानून की वायलेशन करती है तो उसका फौरी तौर पर चलान जारी किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब। आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तुलबा परेशान हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन और तारीख पाकिस्तान की किताब की मार्केट में किल्लत है। इंतजामिया ने दोनों मज़ामीन के इम्तिहान के लिए कोर्स आउटलाइन जारी कर दी है। मार्केट में कुतुब दस्तियाब नहीं है। पूरा साल गुजर गया, इम्तिहान में सिर्फ 3 माह ही बाकी हैं। मज़कूरा किताब दस्तियाब ना होने से सैकड़ों तुलबा का साल ज़ाया होने का खदशा है। वालिदैन का भी पेक्टा से मज़कूरा कुतुब की फौरी प्रिंटिंग का मुतालबा सामने आया। आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तुलबा परेशान नजर आ रहे हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन और तारीख पाकिस्तान की किताब मार्केट में किल्लत है और इंतज़ामिया ने दोनों मज़ामीन में इम्तिहान के लिए कोर्स आउटलाइन जारी की है। मार्केट में कुतुब दस्तियाब नहीं है। पूरा साल गुजर गया है, इम्तिहान में सिर्फ 3 माह ही बाकी हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं, आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले तुलबा परेशान हो चुके हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन और तारीख पाकिस्तान की किताब की मार्केट में किल्लत है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी जुनेद। जी, फूड एंड न्यूट्रिशन और जो बुक है ये मार्केट में शॉर्ट है और इस हवाले से जो पाकिस्तान हिस्ट्री है ये 2 किताबें जो है मार्केट में नहीं मिल रही। हालांकि मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात मार्च में ईद के बाद मुनक्कद होने और सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं, लेकिन ये किताबें जो कि इंग्लिश मीडियम तलबा के लिए तो बिल्कुल ही दस्तियाब नहीं है, लेकिन उर्दू मीडियम के लिए ये किताब 10 साल पहले छापी गई थी जो कि मार्केट में नई किताबें दस्तियाब नहीं है। ओल्ड बुक्स जो हैं उर्दू बाजार से मिलती हैं लेकिन वो भी बहुत मुश्किल किताबें दस्तियाब होती हैं और इस हवाले से वालिदैन ने शदीद तशवीश का इजहार किया कि किताबें मौजूद नहीं हैं और बोर्ड में दाखिले जो हैं वसूल कर लिए गए हैं मुतल्लिका सब्जेक्ट के, जिसकी वजह से बच्चों का फेल होने का खर्चा पैदा हो गया। इसलिए उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन दोनों मज़ामीन की किताबें जो है मार्केट में प्रोवाइड करवाई जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। पहली से 9वीं जमात तक कुतुब को मुख्तसर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। अंजुमन ताजुरान उर्दू बाजार ऑल पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स का हंगामी इजलास हुआ है। सदर खालिद परवेज, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जमील कंबोह ने इजलास में शिरकत की है। पब्लिशर्स ने कुतुब की नए सिरे से तैयारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का पहली से लेकर 9वीं जमात तक जो किताबों को शॉर्ट करने का ये फैसला है, इसके ऊपर ऑल पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स समेत जो अंजुमन ताजुरान उर्दू बाजार है उन्होंने उजलत में होने वाले फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने किए हैं और इस वजह से एक आला सतही इजलास है वो उर्दू बाजार में हुआ है जिसकी सदारत जो है वो सदर खालिद परवेज ने की है और इसमें जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर उहदेदार मौजूद थे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात किए गए हैं कि उनका कहना है कि इस वक्त पंजाब भर में पहली जमात से लेकर 9वीं जमात तक 2 अरब 17 करोड़ 80 लाख रुपए का स्टॉक है वो मौजूद है और किताबों को की नई से तैयारी और प्रिंटिंग के लिए कम से कम 4 माह का वक्त है वो दरकार है, ऐसा कहना है पब्लिशर्स का। और ये मुतालबा किया है उन्होंने कि हुकूमत आइंदा तलीमी साल में सिलेबस के मुताबिक जो किताबों की तैयारी है वो करे और इस साल रवां साल जो पेपर हैं वो शॉर्ट सिलेबस के तहत है वो लिए जाएं ताकि जो स्टॉक मौजूद है वो भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके और दूसरा ताजों को होने वाला जो अरबों का नुकसान है उसको भी बचा जा सके। और दूसरा ये भी उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत वक्त जो है उसकी सरपरस्ती के अंदर जो किताबों की तैयारी है वो आइंदा साल की जाएगी ताकि उसका इतलाक 2027 में हो सके, जिससे न सिर्फ तलबा को रिलीफ मिलेगा बल्कि ताजों के पास जो 2 अरब से ज्यादा स्टॉक मौजूद है वो भी जो आइंदा साल 2026 में उसकी खपत है वो हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। मजमूई शराह 216 रिकॉर्ड की गई है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है। गुलबर्ग 2 284 तक रिकॉर्ड की गई है। समरा फातिमा है हमारे साथ, अपडेट करेंगी। जी समरा। जी बिल्कुल, आज भी शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। फ़िज़ाई आलूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 216 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर भी अगर एक निगाह डाली जाए तो इस वक्त गुलबर्ग 2 के अतराफ में AQI 284 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इकबाल टाउन के अतराफ में 217 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ में 202, जबकि DH फेज़ 5 के अतराफ में आलूदगी की शरह 200 तक रिकॉर्ड की जा रही है। कैंट 196, बेदियां रोड के अतराफ में 194, जबकि जौहर टाउन में 193,
AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से अस्करी 10 में 190 और बरकी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 186 तक रिकॉर्ड की जा रही है। फिजाई आलूदगी में जो है वो कमी नहीं देखी जा रही, बल्कि दिन ब दिन इजाफा ही देखने में नजर आ रहा है। तो ऐसे में माहिरीन शहरियों को ये कह रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल दरामद करते रहें, बगैर मास्क के घरों से ना निकलें। स्मोक और फिजाई आलूदगी मुख्तलिफ बीमारियों का भी बायस बन रही है। ना सिर्फ बच्चे, बड़े हसास अफराद, बल्कि जो सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद हैं वो भी स्मोक और फिजाई आलूदगी की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि दिसंबर के आखिर में और इसी के साथ साथ जो है वो आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो स्मोक और फिजाई आलूदगी बढ़ेगी, बल्कि इसमें कमी देखने में नजर नहीं आएगी। तो शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें और इसी के साथ साथ कोशिश करें कि खुली फिजा में वर्जिश ना करें, अपने बैरूनी सरगर्मियों को कम कर दें और जो डॉक्टर बता रहे हैं, जो माहिरीन सेहत बता रहे हैं, उन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते रहें। दूसरी जानिब अगर मौसम के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त जो है वो मौसम में खुनकी बरकरार है। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद करेगा। आज तो बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मगरबी हवाएं जो हैं वो बारिश का बायस बन सकती हैं। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि अभी चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा। मौसमी अमराज और फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा।